Hello everyone, welcome to second lecture of chapter Pythagoras theorem. According to this theorem, in a right angle triangle, hypotenuse square is equals to sum of the squares of remaining sides. So in this diagram, ABC is a right angle triangle and B is 90 degree, means right angle. So hypotenuse is AC, therefore AC square is equals to AB square plus BC square. Let us do some questions from exercise 13b. First question, in the figure given below, AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC. Prove that C square is equals to A square plus B square minus 2AX. सो ये ए एंगल है, ए एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो है ए, दिस इज साइड ए, एंड बी एंगल का जो ऑपोजिट साइड है उसको डिनोट किया है स्मॉल बी से, एंड सी एंगल का जो ऑपोजिट साइड है ए बी उसको डिनोट किया है स्मॉल सी से, एंड एच इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. So this part DC is x, so remaining part will be a minus x. Now we have to prove this. So in this diagram we have two right angle triangles. So first let us take the triangle ADC. In right angle triangle ADC, D is 90 degree, angle D is 90 degree, so AC is hypotenuse. So AC square can be written as AD square plus DC square. We have taken this right angle triangle, smaller one. So AC square means B square and AD square means H square, and DC square, DC is x, तो x square. Name as equation 1. Then let us take the second right angle triangle means ADB. ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल है उसको लेते हैं इस बार. तो इन ट्राइंगल ADB, D is 90 degree, so AB is hypotenuse. So hypotenuse AB square is equals to H square AD square plus BD square, AD square plus BD square. Now AD is H, in the diagram AD is H and BD, this one BD is A minus X, तो उसको हम लिखेंगे A minus X the whole square. A minus B whole square का फॉर्मूला A square minus 2 into A into B plus B square. So we have H square plus A square minus 2AX plus X square. Now see we have H square and X square. So इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे and we can write H square plus X square is equals to B square, and this AB is C square. So इसको लिखेंगे AB square को C square, therefore C square is this, therefore C square is equals to H square plus X square प्लस A square माइनस 2AX. बहुत इजी है, यहाँ पे मैंने H square प्लस X square को एक साथ लिखा है to replace this by B square. Why? Because we have to prove that C square is equals to A square plus B square minus 2AX. तो मेरे पास मुझे A square मिल गया, ये जो A square है वो मिल गया, 2AX भी मिल गया, और सिर्फ मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मुझे ये B square भी मिल जाएगा. सो B square इज इक्वल्स टू A square माइनस 2AX, और ये कहाँ से मिला है? फ्रॉम 1, तो लिखेंगे फ्रॉम 1. सो आवर प्रूफ इज ओवर.
Question number 3. ABC is a triangle, right angled at B. M is a point on BC. Prove that AM square plus BC square is equals to AC square plus BM square. तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. सबसे पहले ABC is a triangle right angled at B. तो ये ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं और इसमें हम B को राइट एंगल लिखेंगे. ये B है राइट एंगल 90 डिग्री. तो इस तरह से ABC नेमिंग किया. फिर M इज ए पॉइंट ऑन BC. ये BC है, M इज ए पॉइंट. इसका पोजीशन कुछ नहीं बोला, मिड पॉइंट है कि क्या है, तो हमने ऐसे एक पॉइंट ले लिया कोई भी. सपोज दिस इज पॉइंट M. अब प्रूफ करना है AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब इसमें हम देखेंगे ये जो ट्राइंगल है इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल है. एक तो ABM है और दूसरा ट्राइंगल है ABC. तो हम दो बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो लेट अस टेक फर्स्ट द ट्राइंगल ABM. तो हमें ABM ट्राइंगल के लिए AM है हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ABM AM square is equals to hypotenuse square is equals to AB square plus BM square. AB square plus BM square लिखा. लेट इट बी इक्वेशन 1. उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये जो सेकेंड वाला ट्राइंगल है वो. तो इसमें ABC ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC AC is the hypotenuse. So AC square is equals to AB square plus BC square. Let it be equation 2. अब हमें प्रूफ करना है वो एक बार देखते हैं. इसमें देखिए AM स्क्वायर AC स्क्वायर दोनों हैं, ये दोनों हमें मिल गया है. ठीक है, BM और BC भी मिल गया है. ये जो BM स्क्वायर है ये रहा, BC स्क्वायर भी मिल गया है. हमें सब मिल गया है टर्म. सिर्फ AB स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें रिमूव करना है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो ये AM स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AM स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कट हो जाएगा और ये रह जाएगा BM स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. बहुत इजी है, सिंपली मैंने सब्ट्रैक्ट किया. तो AB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर कैंसिल हो गया और बाकी ये आ गया सब्ट्रैक्ट करके. अब हमें इसके अकॉर्डिंगली हमें इसको अरेंज करना है. तो AM स्क्वायर, ये BC को लेफ्ट में ले लेंगे तो प्लस BC स्क्वायर, और AC माइनस AC स्क्वायर को राइट में ले लेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस, और ये जो BM स्क्वायर है वो BM स्क्वायर. नाउ आवर प्रूफ इज ओवर. Question number 4. M and N are the midpoints of the sides QR and PQ respectively of a triangle PQR right angled at Q. तो ये ट्राइंगल PQR है, इसमें Q है राइट एंगल 90 डिग्री एंड M and N are midpoint of QR and PQ respectively. Prove that number 1 PM square plus RN square is equals to 5 MN square and this we have to prove. तो ये जो डायग्राम है इसमें से पहले हम लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन. इन ट्राइंगल PQR एंगल Q is equals to 90 डिग्री. फिर इसमें है M is midpoint of QR. तो we can write QM is equals to MR is equals to half of QR. And similarly
n is midpoint of PQ, so we can write QN is equals to PN is equals to half of PQ. QN is equals to PN. PN and QN क्या है? इसका PQ का हाफ है, बिकॉज N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो इसको हाफ PQ लिखा. अब हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है सबसे पहले. तो इसमें PM स्क्वायर, तो PM स्क्वायर के लिए हमें ये जो ट्राइंगल है वो लेना होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल. फिर RN स्क्वायर के लिए ये RN स्क्वायर है, तो RN स्क्वायर के लिए हमें ये जो RNQ राइट एंगल ट्राइंगल है इसको लेंगे हम. फिर MN स्क्वायर के लिए ये MN स्क्वायर है, इसके लिए हम MNQ राइट एंगल ट्राइंगल इसको लेंगे. ठीक है, तो ये तीनों ट्राइंगल को पहले लेके हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल PM के लिए. ठीक है, तो PM के लिए PQM इन ट्राइंगल PQM, PM इज हाइपोटेनस, तो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिखा. फिर इन ट्राइंगल नेक्स्ट RN स्क्वायर, तो RN स्क्वायर के लिए हम ये ट्राइंगल लेंगे NQR. तो इसमें हाइपोटेनियस है NR स्क्वायर. NR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QN स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. QN स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2. अब है MN, तो MN के लिए ये जो छोटा ट्राइंगल है राइट एंगल उसको लेना है. तो इन ट्राइंगल MNQ में MN इज द हाइपोटेनस, तो MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू QN स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 3. अब हमें ये देखना है क्वेश्चन में दिस प्लस दिस, तो हमें इन दोनों को इक्वेशन 1 2 को ऐड करना है, तो हमें मिलेगा PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर. सो एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो PM स्क्वायर फिर NR स्क्वायर को RN स्क्वायर लिख देते हैं. इट्स सेम थिंग, क्योंकि क्वेश्चन में RN है. ये दोनों लेफ्ट साइड ऐड किया तो राइट साइड भी ऐड करना है, तो PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर दिस प्लस दिस ऐड किया. अब हमें यहाँ पे देखिए जो थर्ड है इसमें QN प्लस QM, इसमें हमारे पास ये दोनों हैं, तो इन दोनों को हम रिप्लेस करके MN लिख सकते हैं. क्यों लिख रहे हैं MN? बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में MN स्क्वायर लेके आना है. तो PQ स्क्वायर प्लस इन दोनों को हम लिखेंगे MN स्क्वायर. कहाँ से मिला? फ्रॉम 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3. हो गया. लेकिन अभी तक 5 MN स्क्वायर चाहिए और हमें सिर्फ एक ही मिला है, तो इन दोनों को हमें देखना है क्या कर सकते हैं. देखिए PQ कैन बी रिटन एज 2QN whole square and QR can be written as this. QR can be written as 2QM the whole square. क्यों लिखा मैंने QM में? बिकॉज ये जो MN है MN स्क्वायर किससे रिलेटेड है? QN एंड QM से, तो मैंने उसमें चेंज कर दिया. ठीक है, ये यहाँ से मिला मुझे. यहाँ से हम ये लिख सकते हैं QR, ये जो QR इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू QM. ओके, एंड सिमिलरली PQ कैन बी रिटन एज 2 इंटू QN. ठीक है, तो मैंने PQ को 2QN लिखा, ये जो PQ है इसको लिखा 2QN, एंड QR को मैंने लिखा 2QM, ये यूज़ किया.
ठीक है, तो मिड पॉइंट है इन शॉर्ट। अब 2 का स्क्वायर है 4 QN स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 QM स्क्वायर। अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे, तो इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन भी ले लेंगे फिर, और ये MN स्क्वायर को एंडिंग में लिखा। 4 कॉमन QN स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। बहुत इजी है ये, सिर्फ देखने में थोड़ा ऐसे लग रहा है बट है इजी। अब देखो QN स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, ये जो है QN स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर यहाँ पे है, दिस कैन बी रिटन एज MN स्क्वायर। तो मैंने MN स्क्वायर लिखा इसको रिप्लेस करके, और रीज़न क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3। तो 4 प्लस 1 MN स्क्वायर हो गया 5 MN स्क्वायर। देयरफॉर PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 MN स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया है। अब सेकेंड पार्ट बहुत इजी है। देखिए ये PM स्क्वायर 4PM स्क्वायर है PQ QR, तो हम ये वाला जो है इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि PM स्क्वायर ये है ही हमारे पास। तो फ्रॉम 1 इसको ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, PM स्क्वायर सेकेंड पार्ट के लिए PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब PM स्क्वायर, हम ये जो चाहिए था हमें PM स्क्वायर है हमारे पास, PQ स्क्वायर जो चाहिए वो भी है, सिर्फ QR के जगह पे यहाँ पे QM है। तो डायग्राम देखते हैं, QR को QM कर सकते हैं क्या चेंज, QR एंड QM, यस, ये तो बहुत इजीली हम चेंज कर सकते हैं। हम QM को लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR, ये QM को लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR, ये स्टार्टिंग में हमने किया था। तो PQ स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ QR द होल स्क्वायर, क्योंकि QM जो है पूरा का पूरा हाफ QR है। ठीक है, अब ये हो गया है सॉल्व। PQ स्क्वायर हाफ का स्क्वायर 1/4 QR स्क्वायर 4 LCM 4 इंटू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PM स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो हो गया हमारा प्रूफ सेकेंड पार्ट। सेम इसी तरह से थर्ड पार्ट को भी प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में देखिए RN स्क्वायर है, तो हम ये RN स्क्वायर के लिए ये जो NR स्क्वायर वाला है इसको यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 NR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QN स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं RN स्क्वायर, इट इज सेम थिंग। अच्छा, अब यहाँ पे RN स्क्वायर हमें मिल गया है जो ये चाहिए था, PQ एंड QR भी मिल गया, ये जो QR है सिर्फ PQ एंड QN ये दो को हमें देखना है, PQ एंड QN। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, QN इज हाफ ऑफ PQ, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था, QN इज हाफ ऑफ PQ, तो इसको हम लिखेंगे हाफ ऑफ PQ स्क्वायर, बाकी को एज इट इज, क्योंकि ये तो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। ठीक है, अब सेम पहले जैसे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, 1/4 PQ स्क्वायर QR स्क्वायर
4 LCM PQ square 4 into QR is 4QR square, फिर 4 into RN square PQ square प्लस 4QR स्क्वायर। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन में था वो आ गया है आंसर। ओके, अब लास्ट पार्ट, वो तो सबसे इजी है, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे PM स्क्वायर RN स्क्वायर दोनों हैं, बाहर 4 है, तो सिंपली हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, एडिंग 2 and 3। ठीक है, तो ये जो फोर्थ है, फोर्थ के लिए एडिंग इसको 1 2 3 इक्वेशन हो गया, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 4, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 5। तो एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, तो 4PM स्क्वायर, लेफ्ट साइड में देखिए 4PM स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर प्लस 4RN स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। तो 4PQ स्क्वायर के साथ 4QR स्क्वायर लिख देते हैं, कॉमन लेके एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। फिर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, मैंने अरेंज करके लिख दिया स्टार्टिंग से ही। देखिए अब 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4PM स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 कॉमन ले लिया, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर और QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये जो है, सॉरी इसमें ये PQ और 4PQ प्लस PQ 5 हो गया, 5 और 4QR प्लस एक और QR, तो 5 हो गया, तो 5 टाइम्स एक ही बार में ये लिख सकते हैं। 4PQ प्लस 1PQ हो गया 5PQ, ये 5, और 4QR प्लस 1QR हो गया 5QR, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, नाउ PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसमें PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इसके लिए हमें ये जो मेन डायग्राम है बड़ा वाला, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, PR स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं 5PR स्क्वायर। देयरफॉर 4PM स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5PR स्क्वायर। रीजन, सिंस in triangle PQR, PR square is equals to PQ square plus QR square, Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem. So our proof is over. Question number 5. In triangle ABC, B is equals to 90 degree and D is midpoint of BC. Prove that AC square is equals to AD square plus 3CD square. So in this triangle ABC, angle B is 90 degree and D is midpoint of BC. Therefore we can write BD, D is midpoint, so BD is equals to CD is equals to half BC, or we can write BC, this BC is equals to 2 into BD, or we can write 2 into CD. Okay, now let us start with right angle triangle. In triangle ABD, AD square
AD is hypotenuse, so AD square is AB square plus BD square. And in triangle ABC, B is right angle, so AC is hypotenuse. So hypotenuse AC square is equals to AB square plus BC square. Now it is given we have to prove AC square is equals to AD square plus 3CD square. तो यहाँ पे AC square हमें मिला, AB एंड BC इन दोनों को हमें चेंज करना है. तो यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम वी कैन राइट BC, ये जो BC है, BC कैन बी रिटन एज 2CD. तो यह CD आ जाएगा, फिर हमें आगे AD भी मिल जाएगा. तो पहले AB को तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हम, तो AB को AB ही रखा है बिकॉज वी कैन नॉट चेंज AB, बट वी कैन चेंज BC. BC कैन बी रिटन एज 2CD या फिर 2BD भी लिख सकते हैं, या फिर 2CD भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD, क्योंकि यहाँ CD लिखा हुआ है. तो 2CD स्क्वायर, ये वाला यूज़ किया मैंने. BC इज इक्वल्स टू 2CD. ठीक है. तो AB स्क्वायर इज 4CD स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 4 है, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चाहिए. तो हम एक को सेपरेट कर देंगे, CD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर. तो एक तो हमें मिल गया जो क्वेश्चन में. अब ये AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो इसके लिए हमें देखिए AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, तो हम ये CD को BD भी लिख सकते हैं बिकॉज BD एंड CD आर इक्वल. सो वी विल राइट CD इज इक्वल्स टू BD बिकॉज BD एंड CD आर इक्वल. और यहाँ पे मैंने BD क्यों लिखा, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर से हमें AD स्क्वायर मिल जाएगा. ओके. इसका रीज़न लिख देते हैं. सिंस BD इज इक्वल्स टू CD और AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1. So our proof is over. Okay students, thanks for watching my video. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना.